آپ اس پر ایجنڈا پہ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنڈا پہ جی ایجنڈا جو پہلی ہے وہ ابھی تک نہیں وہ تو ٹاکڈ آؤٹ ہو گیا. اب دوسرا دا ہاؤس میں ڈسکس دا گورنمنٹس انپریسیڈنٹڈ کریک ڈاؤن آن دا اپوزیشن ورکرز, یہی جو ٹھیک ہے اس پر. اور جو ابھی اس کی سیکنڈ جو ہے وہ ابھی اس پہ بعد میں ہوگا. پہلے آج یہ ٹاکڈ آؤٹ کرائیں گے تو وہ منڈے کو اس پہ کریں I گے. just wanted to make it clear کہ آج یعنی دوسری ہمارے لیے بڑی اہم ہے, صوبوں کے لیے بھی. وہ منڈے سے شروع کریں گے. اچھا ٹھیک ہے جی میڈم پلیز. تھینک یو چیئرمین صاحب. اس دن بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن پھر ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ میرے پاس آئیں کہ آپ نے کہا کہ وہ بولیں یا میں, تو ظاہری بات ہے وہ ہماری سینئر ہیں تو میں نے کہا کہ وہ بھلے بولیں. اس دن مچھ کے حوالے سے بھی میں ضرور, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے تو یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور کافی لوگوں نے کنڈیم بھی کیا ہے, میں ایک دفعہ پھر نہ صرف کنڈیم کرتی ہوں لیکن جس بربریت اور یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا, اس گورنمنٹ کا جو اس حوالے سے رسپانس آیا ہے وہ بڑا ہی مایوس کر رہا ہے. ابھی تک وزیر اعظم نہیں گئے. بلوچستان انتہائی اہم صوبہ ہے اور اس میں ہزارہ کمیونٹی بڑی ہی پسی ہوئی کمیونٹی ہے. ان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ظاہری بات ہے بلوچستان کو اور پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے یہ واقعات ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے. پھر اس کو فرقے وارانہ کے حوالے سے بھی اس کو مینشن کیا جاتا ہے دوسرے حوالوں سے, لیکن دہشت گردی ہے. چاہے اس میں گلوبل, انٹرنیشنل, نیشنل, لوکل جو بھی ہاتھ ہیں, اگر وہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے غریب لوگوں پر وہ دھاوا بولتے ہیں, تو کیا ہماری جو حکومتیں ہیں پروونشل یا فیڈرل, وہ ان کی روک تھام, جو بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ تھا 2007-8, پھر اس کے آنورڈس جو تھا 4-5 سال, اس کا قلعہ کما کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. ظاہری باتیں دوسری بھی اس پارٹی سے, پر مسلم لیگ نون پر بھی بہت بڑی ذمہ داری آئی. ہم نے 6 سے 7 بہت بڑے آپریشنز کیے تھے. اس وقت آپ جو ہے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے. ہمارے کئی کارکن لوگ, ظاہری بات ہے لا انفورسنگ کے ایجنسیز کے جوان, ہمارے فورسز کے, ہماری خود لیڈر محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ, ہم پر وہ گزری ہے. جتے باہے برے وہ جائے جلے سندھی میں کہتے ہیں, ہم پر گزری ہے. تبھی کل چیئرمین بلاول صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ دل کی گہرائی سے بات نکل رہی تھی. ہمارے پاس وہ ریئلائزیشن ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی انگلی میں نام کٹا کر شہیدوں میں, نہیں, اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو, لیکن اگر یہ انٹرنیشنل جنگ ہے تو اس میں پاکستان نے بڑا, اس میں جھونکا گیا پاکستان کو, لیکن بڑا انہوں نے جھیلا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن اگر اپوزیشن کے لوگ جا سکتے ہیں, مرہم دل پر رکھ سکتے ہیں, اگر کچھ نہیں تو دل پر مرہم رکھ سکتے ہیں, تو کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ صرف اپنے 1-2 ایلچی بھیجنا, وہی ریپیٹیشن, ان کی بھی عجیب سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, بھلے یہ بھائی ہمارے اس پہ جواب دینے چاہے سو بسم اللہ, لیکن وزیر اعظم کو وہاں بھی ہونا چاہیے تھا, یہاں آ کر ہمیں بتانا چاہیے تھا, کیونکہ دوسرا ہاؤس ابھی سیشن میں نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی سدباب نہیں ہوا ہے, کوئی نہیں ہوا ہے. یعنی ارطغرل غازی کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے, تصاویر جاری ہو سکتی ہیں, دوسری ترجمانوں کے ساتھ, یعنی ترجمانوں کے بجائے اگر یہ میٹنگز جو ہیں کشمیر کے مسئلے پہ ہوتی, یقین کیجئے کشمیر کا مسئلہ کافی حد تک نمایاں, اور ہم اس پر لابنگ کے حوالے سے, سفارتی حوالوں سے بڑی ہی پاکستان میں وہ پوٹینشل ہے, پاکستان کے ذہنوں میں وہ پوٹینشل ہے. پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام ہیں وہ بھی آپ کو رستوں روڈوں پہ نکلتی ہوئی دکھنے میں آئی, لیکن گورنمنٹ صرف ترجمانوں کی میٹنگ سے آگے نہیں چلی. ابھی ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو ایسا ہے, ہم نے جمہوریت کے مائی باپ امریکہ میں بھی جو کل کی صورتحال تھی وہ ہم نے دیکھی, دنیا نے دیکھی کہ جس طریقے سے دھاوا بولا گیا پارلیمنٹ پر, جس طریقے سے کیپٹل ہل پہ وہ جو بلڈنگ جس سے سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیو کے لوگ بیٹھتے ہیں, جہاں نینسی پلوسی کی آفس ہے, وہاں بھی دھاوا بولا گیا. تو یہ پورا فرسٹریشن کا ایک ماحول ہے, لیکن ہم نے اپنا ہاؤس آرڈر میں لانا ہے, اور اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو یہ گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے, چاہے دہشت گردی کے واقعات ہو, چاہے خارجی یا داخلی
जो पोलराइजेशन है, जो मसाइल हैं, इसको एक आपके पास विजन चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और उसके सामने आपके पास एक आइन भी है, आपके पास पार्लियामेंट भी है। परसों चल रहा था कि पार्लियामेंट को हम जो है एक्टिव करना चाहते हैं ताकि जो भी डायलॉग है, जो भी चीजें यहाँ हो। पार्लियामेंट पे तो ताले लगाए हुए हैं, कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। ये भी रिक्वेजिशन अपोजिशन की है, हमारे साइड से ये रिक्वेजिशन आई है, और जिसमें हमने समझा कि ये चीजें अहम है, उस पर जो है पॉइंट्स वक्त लेकर आए कि क्या गवर्नमेंट ये इजलास नहीं बुला सकती थी। अभी तक बहुत सारी कमेटीज पर जो है वो पाबंदी है। इस तरह से जमहूरियत नहीं चलती। इस तरह से आप लोगों की कबूतर की तरह आप कहेंगे हम भी आंखें बंद करें, अपोजिशन भी आंखें बंद कर ले, ये नहीं हो सकता। सिंध से लेकर बलोचिस्तान से जहां से गैस निकलती है वह इस वक्त इतनी बदतरीन लोड शेडिंग है कि लोग इस वजह से आपको रस्तों पर दिखाई देते हैं। और ये जो वाकया है मच्छ वाला, इस वजह से आपको पता है कि सारे सूबों में फ्रस्ट्रेशन है, दुख की कैफियत है, गम है, गुस्सा है, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। वही तर्जमानों के इजलास कि किसको जाकर कौन सा जवाब देना है। पेटी किस्म की सोचें, बड़ी लो किस्म की, जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज अभी तक न हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में मैं फिर से कहती हूं कि पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लोगों के पास भी वो विजन है और वो हिम्मत है। ये जो एजेंडा थी, ये सारी पार्टीज के साथ मिलकर हम सब लोगों ने इसको जो है सजेस्ट किया, और अच्छी बात है ये एजेंडा पे आई। उसमें उस दिन भी लोग जो हैं बोले हैं, और मैं उस पर ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अभी मोहसिन भाई हमारे सेनेटर बड़े, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने नैब के हवाले से बात की, उन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो उस दिन बात हुई तो विक्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा टूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो नैब हो रहा है। उसके अलावा पीडीएम के हवाले से जहाँ जहाँ जलसे होते हैं, गुजरांवाला से लेकर आपने देखा कि लोगों पर, कारकुनों पर जिस तरीके से धावे बोले गए, जिस तरीके से उनके खिलाफ केसेस किए गए, उनके घरों से उठाया गया, और ये कहते कुछ नहीं हुआ। टॉप की लीडरशिप से लेकर नीचे आप देखें कि सब कटहरे में खड़े हैं, यानी गवर्नमेंट साइड दूध की धुली हुई है। गवर्नमेंट साइड जो है, उनके लोग जो हैं, उन पर आप हाथ नहीं लगा सकते, भले केपीके की एच साहब की ऑफिस बंद हो जाए, भले आपके फॉरेन फंडिंग के केसेस हों, भले वापडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो है वो अगर पेश न भी हो तो उनको छूटे। बाकी अपोजिशन जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, किसी को भी गले से पकड़े, किसी की भी पगड़ी उछाले, ये चीज़ है। इस हवाले से काफ़ी सारे हमारे दूसरे भी बहन भाइयों ने बात की है, मैं इनको सेकंड करती हूँ। शेरी रहमान साहबा ने उस दिन बात की, आयशा फारूक साहबा ने बात की, मुसद्दक मलिक साहब ने उस दिन स्पीच की। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये तनकीद बराए तनकीद के ज़मरे में नहीं देखनी चाहिए। इन चीज़ों को आप अगर चाहते हैं कि चीज़ें चलें तो उसके लिए सिंधी में कहते हैं कुछ बाढ़ बग भरी थी, हम कुछ आपको भी आगे आना पड़ा, लेकिन अब वो टाइम भी चला गया, अब वो गुफ्तो शुनिद वाली बात भी नहीं रही, और यही बात उनको तकलीफ दे रही है पीडीएम के हवाले से। 3 दिनों से बार बार हिट किया गया पीडीएम को कि पीडीएम जो है एक खुदा न खास्ता, जब उनके धरने हुए थे क्या वो जस्टिफाइड थे? उन्होंने तो इदारों तक की बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था। हम तो आईनी तरीके से, हम तो जमहूरी तरीके से, पीसफुल तरीके से, एक भी गमला नहीं टूटा। बाकी किसी का भी कोई कंट्रोवर्शियल बनाकर जानबूझकर वो एक लाइन दिखाकर, क्योंकि पहली दफा बहुत अरसे के बाद पहली दफा मुख्तलिफ पार्टीज अपने अपने अनोखे तरीके की, जो सारी आइन पर यकीन रखती है, उसके फ्रेमवर्क में अपने आप को पाबंद समझकर और पार्लियामेंट्री सियासत करती हैं। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि यहाँ वहाँ वो नहीं भटकी हैं, वो आइन की बात करते हुए, उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए वो अपने हकूक़ की बात करती हैं। 11 तंजीमों का इत्तेहाद, ये कोई कम बात, छोटी नहीं है। हम अगर एहतजाज कर रहे हैं तो हम किसी गैर आइनी हथकंडे को इस्तेमाल करके ये नहीं कह रहे कि हुकूमत को गिरा देना चाहते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं, और जितनी हम में होगी, हिम्मत होगी या डिटर्मिनेशन होगी, हम कामयाब हो सकते हैं। अगर उतनी नहीं होगी तो वो कामयाबी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। तो ये हमें उस हवाले से जज करना कि पीडीएम बन गया है, ये कोई खुदा न खास्ता
पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, खुदा न खास्ता। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेकाम हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान को जमहूरी जो भी यहाँ इसमें तरीके और वाजे किए गए हैं उस पर अमल करते हुए पाकिस्तान चले और जमहूरियत चले, पार्लियामेंट में चले। 2 सालों तक हमने दोनों ऐवानों में हर मुमकिन कोशिश की कि इनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से आभार बच जाए। वज़ीर आज़म आते नहीं हैं, वज़रा आने के लिए तैयार नहीं है, आते हैं तो उस दिन तकारीर का आपने जो जलवा देखा कि यानी बात में न कोई दम न कोई बात, 2 पन्नों की स्पीचेस होती हैं, हर किसी के जेब में पड़ी है, रिपीटेशन, गंदा करना, बुरा करना, फिर आप कहते हैं अपोजिशन आपसे गुफ्तगू नहीं करेगी। नो वे, टाइम इज अप। वो जो बात करने की थी, वो जो आप कहते हैं कि फोरम ये पार्लियामेंट का था, तो वो 2-2.5 सालों में आपने क्या किया? हमने यहां जो देखा सीखा 6 सालों में, वो भी मराइल थे। हमने देखा सख्त तनकीद हम करते थे मुस्लिम लीग नून पर, और यही सवाती साहब, शबली साहब यहाँ हमारे बेंचेस में हमारे साथ होते थे। कभी CCI पर हम रेजोल्यूशन ला रहे होते थे, कभी खारजी मामलात पर, किसी बात पर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है पार्लियामेंट को बिल्कुल इग्नोर करके छोड़कर भाग जाए। हर चीज का जवाब वो देते थे, यहाँ होते थे। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लोग कहते हैं कि मुझसे आती तो आपको क्यों फिर सेनेट में नहीं आना चाहती? मैं कहती इस वजह से कि जो शुरू के 3 साल में हमने सीखना था वो सीखा। अब हमें लगता है कि हमारी टाइम, एनर्जी, वक्त जो कीमती होता है, आपके इन सालों में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपका वो मैदान ही नहीं है जहां आप कुछ डिलीवर कर सकते। आपकी बात ही ना सुनी जाए तो आप क्यों आना चाहेंगे ऐसे ऐवानों में, क्यों बैठना तक चाहेंगे? तो इस चीज की जो है ये प्रैक्टिसेस जो है ये कहीं नहीं जा रही, और डायरेक्शनलेस जो चीजें हैं उसका कोई भी वो रिजल्ट नहीं निकलता हुआ नजर आता है। आपकी खारजी मामलात जो है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलते हैं कि क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में कभी लाए नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन स्पीच कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, अच्छी चीजें होंगी, जाहिर बात है अपोजिशन ने हमेशा वो उसको मान दिया है, लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से जो सवालात थे उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा हम जल्दी में स्पीच करके वो चले गए। बाकी बहुत सारे साथियों को स्पीच करनी थी, उनके जवाब अभी तक नहीं आए। यानी पार्लियामेंट में वो चीजें डिस्कस होती ही नहीं है। जो भी आपकी सिक्योरिटी के हवाले से अभी जो इतने बड़े मामलात हुए हैं कोयटा में या दूसरी तरफ जो है दहशतगर्दी के, उसकी नेक्टा और नैप पर बात करके हम जो है, मैं तो देख रही हूँ 6 सालों से कि बात कर रहे हैं, लेकिन खासकर 2 सालों में उन्होंने कहा था, PTI ने उनके मैनिफेस्टो जो है ना इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वाला मैनिफेस्टो में तकरीबन 6 से 7 उनकी पॉइंट्स चैप्टर्स है। हम उनसे पूछना चाहते हैं एक भी चैप्टर की एक भी पॉइंट पर उन्होंने अमल किया है? किसी भी कमेटी में आप आते हैं तो जो बात करते हैं उस पर आप कभी खड़े रहे हैं? अवाम के हवाले से जो भी पॉलिसी होती है, आप पर जो भी क्वेश्चन मार्क आता है, आपने उसको हटाने की जरूरत महसूस की है? आपने छोटे सूबों के हवाले से बारहा कहा कि हम मालकी करेंगे, हम और करेंगे, हम जो है उनके जख्मों पे मरहम। हमने क्या देखा वो अभी आएगा जाहिर बातें पॉइंट में, जो आइलैंड्स के हवाले से पाकिस्तान आइलैंड्स अथॉरिटी जो एक तरह से बिल्कुल गैर आईनी, गैर जमहूरी है, जिसको हम रद्द कर चुके हैं। 2 ऐवान पाकिस्तान के बहुत बड़े अहम, सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान की पहली रेजोल्यूशन पास की थी, वहां से सबने जो है ये रद्द किया। बलोचिस्तान असेंबली से उस ऑर्डिनेंस को रद्द किया, अब वो लैप्स हो गया है, फिर भी उस पर काम खत्म नहीं किया क्योंकि यहाँ नहीं उनकी हिम्मत नहीं हुई कि लेकर आए, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन जो थी यहाँ तैयार थी, तकरीबन सारी अपोजिशन की पार्टी ने इस पे बाद में जब आएगा एजेंडा अगर कर दे रही हूँ। चेयरमैन साहब की ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हुकूमत बन चुकी है, जिसमें विक्टिमाइजेशन सबसे बड़ा, और मुंह खोल के 2 मुंह अजदा बला बनकर वो जो है वो ये हमें नहीं, ये पाकिस्तान को दीवार से लगाने की जो है वो है। बिल्कुल आपने सही कहा, उस पर बिल्कुल तफसीली बात हम करेंगे, आइलैंड्स के हवाले से, गैस के हवाले से, छोटे सूबों के, और बल्कि पंजाब में भी मसाइल होगी। जैसे NFC में अगर कटौती की गई है तो पंजाब के हिस्से में भी कटौती की गई है, वो भी उन तरफ से भी सेनेटर जो हमारे भाई बहन बैठे उनको भी बोलना चाहिए, लेकिन संत को उसमें बिल्कुल मुआशी मार देकर दीवार से लगाए जाने की कोशिश की गई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि हमें मंडे को आइलैंड अथॉरिटी बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू।